स्वागत है माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह का। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, मंचासीन उद्योग जगत के प्रमुख और विशिष्ट अतिथिगण, देश प्रेम के स्तंभ, यहां विराजमान सभी दर्शकगण, सशस्त्र सेना झंडा दिवस वर्ष 2021 के CSR कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से मैं कर्नल JK सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह अद्भुत संयोग है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव स्तर की कमान एक ऐसे व्यक्ति श्री B आनंद के हाथों है, जिन्होंने सैनिक स्कूल अमरावती नगर में, जो हमें अभी अभी पता लगा, 5वें क्लास में वर्दी पहनी और 6ठे क्लास में हथियार उठाया। अंग्रेजी भाषा के गोल्ड मेडलिस्ट, भाषा का ज्ञान, हाउसिंग का विज्ञान और हार्वर्ड ड्यूक यूनिवर्सिटी का शैक्षिक सम्मान लिए मैं श्री B आनंद, सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम की पहली कड़ी में कृपया 2 शब्द कहें। Honorable Raksha Mantri, Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Dinesh Kara, Chairman SBI, Srimati Kaveri Kalanidhi, Executive Director Sun TV Group, Dr. Hari Prasad, Joint Secretary ESW, Air Commodore Aluwalia, Secretary KSB, guests from PSUs, corporate world, MOD officials, media, ladies and gentlemen, a very good afternoon. I consider it a great honor to welcome each and every one of you to this 3rd edition of the CSR Conclave for the Armed Forces Flag Day. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to this august gathering for sparing your valuable time and participating in the CSR Conclave. I acknowledge with gratitude the generosity of all the corporate donors, especially Shri Dinesh Kara, Srimati Kaveri Kalanidhi, and others who have contributed towards welfare of our veterans of the Indian Armed Forces. I will also like to thank Indian Air Force for providing this beautiful auditorium for this conclave. Let me take this opportunity to brief you about the Armed Forces Flag Day celebrated on 7th December and the activities of the Department of Ex-Servicemen Welfare. The nation observes Armed Forces Flag Day on the 7th of December every year since the year 1949 in honor of our 32 lakh ex-servicemen fraternity and 15 lakh serving soldiers of the Indian Armed Forces. This day enables the countrymen to contribute funds and display flags as a mark of our gratitude and appreciation to the serving soldiers and veterans of the Indian Armed Forces. The Armed Forces Flag Day Fund, called as AFFDF shortly, is maintained by the Kendriya Sainik Board and was instituted on 13th April 1993 by amalgamating 4 British-era funds which existed prior to 1949. AFFDF is used for sponsoring a number of welfare schemes for the ESM, disabled soldiers, war widows, and dependents, especially for below officer ranks. A separate department for ex-servicemen welfare was carved out of the Department of Defense in the year 2004 to oversee the welfare, resettlement, healthcare, and pension-related issues of the ESM fraternity. The DESW is responsible for formulation of policy and overseeing the implementation of all welfare schemes for ex-servicemen, widows, dependents, and for administration of welfare funds. The department has 3 attached offices: the Kendriya Sainik Board, the Directorate General for Resettlement, the Central Organization of the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme. The KSB implements policies towards resettlement and welfare of approximately 32 lakh ex-servicemen, including 7 lakh Veer Naris,
in addition to their dependents and orphans. It's a 45-member board with Honorable Raksha Mantri as the chairperson and includes chief ministers and lieutenant governors of states and union territories, the 3 service chiefs and senior government officials. We have 33 Rajya Sainik boards at state level and 403 Zilla Sainik boards at district level pan-India to implement the welfare measures for ESM. The DGR implements various policies for pre- and post-retirement training, re-employment and self-employment of ex-servicemen. The DGR is assisted in its mission by 5 Directorate of Resettlement Zones co-located within the 5 Army Command Headquarters. The central organization of the ECHS takes care of the health and medical needs of ex-servicemen and their dependents through a network of 427 polyclinics plus more than 3,500 M-panel private healthcare organizations across the country. AFFDF sponsors 17 welfare schemes for the ESM fraternity, from supporting the disabled ex-servicemen to war widows, the dependents, running of paraplegic centers, Cheshire homes, and financial support for treatment of serious diseases. Although all welfare schemes are important, I wish to particularly highlight 3 schemes, namely the Penury Grant, the Education Grant, and the Marriage Grant, because of the impact they make on the ex-servicemen. In order to keep our armed forces young, the armed forces are compelled to retire a sizable number of soldiers in their mid-30s. To support these young retirees having school and college-going children, an amount of ₹1,000 per month is given to the first 2 children of such ex-servicemen or their widows up to graduation. This expenditure amounts to approximately ₹100 crores per annum. Coming to Penury Grant, the wars of 1947, 62, 65 and 71, the nation was required to induct a large number of defense personnel who were released immediately after the war was over without any pension. Some 12,500 ex-servicemen non-pensioners above the age of 65 or their widows are given a Penury Grant of ₹4,000 per month to assist them to live with dignity. This expenditure alone comes to about 60 crores every year. In addition, through the Marriage Grant, we give about ₹5,000 each to 2 girl children or remarriage of widows. And this comes to an expenditure of ₹50 crores every year. Thus, as you can see, the total amount required to fund these 17 schemes annually comes to approximately 210 crores. However, through the Armed Forces Day Flag Fund, we are able to garner only about 95 crores each year, including internal accruals through interest and collections. We have a cumulative backlog of approximately 320 crores worth of benefits to be released for some schemes like education, where applicants are still waiting since mid-2018. This is despite the fact that we have disbursed approximately 222 crores in the last 2 years to over 60,000 beneficiaries. Prior to 2014, there were no systematic and organized efforts made by KSB to collect CSR funds. There is a significant uptrend in CSR fund collection from 2015-16, when it was 5.22 crores, to last year, 2019-20, when we collected 37.53 crores. But unfortunately, due to the pandemic, in the last year we could collect only 28.92 crores, the year ending 2021. We are confident that we will be able to sustain this momentum in the coming years with your support, and your generosity will help in reducing the backlog and satisfying the needs of beneficiaries. I would therefore appeal to you to contribute generously to the Armed Forces Flag Day Fund and be our partners in the noble cause of extending welfare for our veterans and their kin. Thank you and Jai Hind. माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट आत्मनिर्भर भारत की ओर ठोस कदम लेने के लिए लगातार प्रयासरत। पहले उत्तराखंड में हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्य बखूबी संभाला। उन्हें प्रकृति को प्रार्थना से मनाना भी आता है और आपदा को साहस से हराना भी आता है। मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया माननीय
रक्षा राज्य मंत्री जी इस भव्य समारोह को संबोधित करें। परम श्रद्धेय माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी श्री बी आनंद जी, एसबीआई के चेयरमैन साहब दिनेश जी और सन टीवी से यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती कावेरी जी, सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज इस अवसर पर हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आप सब व्यापार एवं उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रतिबद्ध नागरिकों में जिस तरह की दिलचस्पी और निष्ठा पैदा हो रही है, उसे देखकर मुझे अत्यंत आनंद तथा गर्व का अनुभव हो रहा है। राष्ट्र हित के लिए सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान के सम्मान स्वरूप हम हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। राष्ट्र हित के लिए लड़े गए युद्धों और देश विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करते हुए हमारी सशस्त्र सेनाओं के सैनिक अपनी बेशकीमती जिंदगी आज भी न्यौछावर कर रहे हैं। इन बलिदानियों और उनके परिवार की देखभाल और पुनर्वास को सुनिश्चित करना देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे ये एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ भूतपूर्व सैनिक ऐसे भी हैं जो कैंसर, हृदय रोग इत्यादि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें हमारी देखभाल और मदद की जरूरत है, क्योंकि वह इलाज का महंगा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अत्यधिक अनुशासन, समर्पण और कार्य क्षमताओं के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। अशक्त, गैर पेंशन भोगियों, वृद्ध और अक्षम भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारजनों, युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों की विधवाओं और अनाथ बच्चों की सहायतार्थ आपका स्वेच्छापूर्वक योगदान बहुत सराहनीय है। मैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के सभी योगदानकर्ताओं की हार्दिक सराहना करता हूं और साथ ही मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करूं, कुछ लाइनें उनके लिए बताना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाकर शहर से शहर को, गांव से गांव को और दिलों से दिलों को जोड़ा था। जब कृषि मंत्री थे, तब फार्मर कमीशन, फार्मर्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम बनाकर उन्हें भविष्य की सुरक्षा का एहसास दिया था। और जब 2010 में यूएन जनरल असेंबली में गए तो हिंदी भाषा में स्पीच देकर
भाषा, संस्कृति और देश का गौरव बढ़ाया। जब गृह मंत्री थे तब कुछ वर्ष पहले IGR शिलांग में, जहां मुझे उद्घोषणा करने का सौभाग्य मिला था, वॉर मेमोरियल पे शब्द गूंज रहे थे और तत्कालीन गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह के शहीदों के बलिदान के लिए आंखों से लगातार मोती झर रहे थे। आज भी IGR शिलांग में वॉर मेमोरियल के फर्श का वह हिस्सा जब सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो वह मोतियों सा चमकता है। आज भी सूरज की किरणें कुछ समय के लिए वहां रुक जाती हैं, शौर्य का सैल्यूट करती हैं और वापस एक देशभक्त का सलाम सृष्टिकर्ता के आंचल में वापस समर्पित करती है। और तभी से वॉर मेमोरियल पर 30 मिनट के कार्यक्रम करने की श्रृंखला शुरू हुई, जो आज भी मौजूद है। जब वे रक्षा मंत्री बने तो भारत ने फाइटर जेट तेजस के साथ अंतरिक्ष में अपने पहले रक्षा मंत्री को उड़ान भरते देखा। हर विभाग में मंत्री मल्टी रोल, दरअसल तेजस ने मल्टी रोल होना माननीय रक्षा मंत्री जी से सीखा। जब वे फाइटर जेट तेजस पर हाथ रखते हैं तो उसे लोहे से भी ज्यादा मजबूत इरादा देते हैं, और जब वे फॉरवर्ड एरिया में किसी जवान के कंधे पे हाथ रखते हैं तो अपने परिवार में होने की आत्मीयता का एहसास देते हैं। और आखिरी बात, जब वे शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एंटी कॉपी एक्ट पास करवाया था। पर आज जब आपके स्वयं का व्यक्तित्व इतना बड़ा और इतना विशाल हो गया कि वे भारत के युवाओं को अपने व्यक्तित्व की कॉपी करने से नहीं रोक सकते, तभी वे कहते हैं कि मैं गांधी जी की अहिंसा का ज्ञान हूं, भाई वल्लभ भाई पटेल का राज्यों को एक सूत्र में बांधने का एकता का संज्ञान हूं, भगत सिंह का सीना हूं, बिस्मिल का फिर आऊंगा का आह्वान हूं, ऊधम सिंह की जिद हूं, राजगुरु की शान हूं, आजाद की आखिरी गोली में छुपा हुआ स्वाभिमान हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाएं अपने कदम से इस जहान में ऐसा नाम निशान लिखूं, दुश्मन की छाती पर संगीनों से हिंदुस्तान लिखूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। यशस्वी शौर्य से परिपूरित श्री राजनाथ सिंह, मैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस भव्य समारोह को संबोधित करने की। कर्नल AK सिंह खिला बना दे। हमारे सहयोगी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, सेक्रेटरी ESW मिस्टर B आनंद और चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री दिनेश कारा जी और मिस्टर कावेरी मारन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संधू, heads and representatives of the public sector and business houses, friends from media और रक्षा मंत्रालय के अन्य सभी अधिकारी। आज रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित CSR कॉन्क्लेव में आप सभी महत्वपूर्ण हस्तियों, जिन्होंने व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर हमारे पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और आश्रितों के कल्याण के लिए बड़ी उदारतापूर्वक कंट्रीब्यूट किया है, के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपकी मैं पूरी प्रशंसा भी करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरह से आज महफूज है। आजादी के बाद से ही हमारी सेना के वीर जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए देश को सुरक्षित रखा है, उसका पूरा वर्णन करना यह बहुत ही कठिन काम है। चाहे भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए बहुआयामी युद्धों में जीत हासिल करना हो, या फिर सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे
बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान भी दिया है और कई सैनिक अक्षम भी हुए। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को जो मानसिक संताप सहना पड़ता है, उसका अनुमान लगाना भी यह मुश्किल है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों के सहयोग में आगे आएं। ऐसे में उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए सन 1949 में संसद की रक्षा समिति द्वारा 7 दिसंबर के दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। यह दिन हमारे सैनिकों के अमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर पिछले साल से इसमें हम लोगों ने बदलाव किया है और यह बदलाव करते हुए अब गौरव माह के रूप में इस पूरे महीने भर मनाने की शुरुआत की गई है। वैसे तो हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए किसी खास दिन, सप्ताह या माह की जरूरत नहीं है। साल का एक एक दिन, एक एक पल उनके सम्मान का होता है। फिर भी एक प्रतीक के रूप में मंत्रालय द्वारा इसको गौरव माह के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है और इसे केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हमारे सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में मनाया जाएगा। आप सबको शायद इस बात की जानकारी होगी कि लगभग हमारे 60,000 सैनिक या डिफेंस पर्सनल प्रतिवर्ष जो है रिटायर होते हैं और सामान्यतः इनकी जो एज होती है वो 40 से या कम होती है। ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, अनुशासित भी होते हैं और उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। समाज के लिए रिटायर होने के बाद भी इनकी उपयोगिता बनी रहती है। साथियों, कोविड जैसी महामारी के दौरान भी हमारे पूर्व सैनिक कभी पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने बड़ी संख्या में स्वेच्छा से अलग अलग जगहों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कम्युनिटी सर्वेलेंस, क्वारंटाइन फैसिलिटीज के मैनेजमेंट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी तरह मदद की है। यानी आर्म्ड फोर्सेज में सेवा के काल में और सेवा के बाद भी वे उसी जज्बे से देश की सेवा में लगे रहे। इसलिए जिस तरह हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारे सैनिकों पर है, उसी तरह उनके और उनके आश्रितों का उत्तरदायित्व हम सब पर भी है। हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि आम नागरिक हों या हमारे उद्योग व्यापार, सभी के लिए सुरक्षा यह हमारी पहली जरूरत है। और जब हम यह मान लेते हैं कि किसी भी समाज के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की अहम जिम्मेदारी भी है। यह गौरव माह इसी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का एक माध्यम है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से सामुदायिक संस्कृति रही है। यहाँ देश और समाज के प्रति हर क्षेत्र में समर्थ लोगों के सहयोग की बड़ी पुरानी परंपरा मिलती है। प्राचीन काल में दधीची या कर्ण जैसी महान विभूतियां हों या मध्यकाल में भामाशाह या रहीम, सभी समाज और राष्ट्र सेवा में सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान के लिए वे जाने जाते हैं। रहीम के बारे में तो कहा जाता है कि जब वह दान दिया करते थे तो हमेशा शीश नीचे झुका करके, और उनसे एक बार पूछा गया, आप दान देते समय नजरें नीची क्यों रखते हैं? क्या सुंदर उत्तर उन्होंने दिया था, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पै धरें, याते नीचे नहीं। यानी देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता रहता है, पर लोगों को भ्रम यह होता है कि मैं उन्हें दे रहा हूं। इसलिए सदा मेरी निगाहें दान देते वक्त नीची हो जाया करती है। और मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, देने का काम वही कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति देने का काम कभी नहीं कर सकता, बराबर लेने का काम करता है। और मेरी यह मान्यता है कि जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसे सुख और आनंद की अनुभूति होगी। इसमें जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वैसे इन जनरल 6th 7th क्लास या 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि कहना हो तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लेट अस
कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है, ये वृत्त। इस सर्किल का जो सर्कमफरेंस है, जो इसकी परिधि है, इसको जितना ही आप बढ़ाते चले जाओगे, उसी प्रपोर्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, परमानंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो इसको यूं कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand, circumference of man is directly proportional to the paramanand, paramanand। मन बड़ा जिसका जितना होगा उतना ही उसे आनंद की अनुभूति होगी। साथियों, कुछ सालों से, यानी जब से आप जैसे बड़े कारपोरेट डोनर्स का साथ हमें मिला है, फ्लैग फंड में कई गुना की बढ़ोतरी हुई। आप लोगों का यह सहयोग आपको उन स्वतंत्रता सेनानी उद्योगपतियों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें आज स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सेवा, समर्पण और सहयोग के कारण याद किया जाता है। वह चाहे घनश्याम दास जी बिरला हो, या वह जवाहरलाल जी बजाज हो, या फिर जमशेद जी टाटा हो, इन सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में आर्थिक रूप से अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी देश उन्हें याद करता है, न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी हुए युद्धों में आम जनता द्वारा हमारी सेनाओं को किए गए सहयोग के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो हमें आज भी ऊर्जा से भर देते हैं। 1962 के युद्ध में राष्ट्र के आह्वान पर इस देश की जनता ने दिल खोल कर दान दिया था, जिससे हमारे सैनिकों की अस्त्र शस्त्र से लेकर वस्त्र तक की जरूरतें पूरी हो सकी। हमारी माताओं, बहनों और बहुओं ने अपने गहने, आभूषण और लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी हमारी सेनाओं को दान कर दी थी उस समय 62 के वार में। और यह है राष्ट्र के प्रति हमारी यह उदात्त भावना, यह बड़ी भावना। और इसी तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने देश के जवानों के लिए अपना बहुत कुछ अर्पित कर दिया। इन्हीं सबसे प्रेरित होकर इसी तरह की एक पहल मैंने होम मिनिस्टर के रूप में शुरू की थी। जब मैं होम मिनिस्टर था उस समय मैंने पहल शुरू की थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों और जवानों के कल्याण और उनके उत्साहवर्धन के लिए हमने भारत के वीर नामक एक पहल शुरू की थी, जिसमें कारपोरेट, फिल्म और खेल जगत के लोगों के साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और जिस दिन हमने इसकी शुरुआत की थी, कुछ लोगों को आमंत्रित किया था, वैसे ही जो हमारे जान पहचान के थे, ऐसे ज्यादा नहीं, 30, 40, 50 लोग। आपको आश्चर्य होगा, वहां मैं मौजूद था, वहीं पर लगभग 30 करोड़ रुपए उसी समय आ गए थे वीर जवानों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और जब मैं मिनिस्ट्री छोड़कर चला हूं, इस फंड में जैसा मुझे बताया गया 300 करोड़ रुपए थे, 300 करोड़। कहना मैं ये चाहता हूं कि अपने देश और देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूतों के लिए कुछ न कुछ करने की परंपरा हमारे देश में ये लंबे समय से रही है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें बड़े और खुले मन से आगे आना चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व भी है और मैं मानता हूं कि हमारा यह राष्ट्रीय दायित्व भी है। साथियों, बड़े और खुले मन की चर्चा यहां मैं इसलिए करता हूं क्योंकि छोटे मन से लोग जब कभी ऐसे सामाजिक या राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करते हैं तो उनके मन में अभिमान आ जाता है। उन्हें लगता है जो कुछ भी हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूं, जबकि समाज और राष्ट्र कार्य में किसी अहम का या किसी मैं के भाव का कोई स्थान ही नहीं है। जिस समाज से हमें इतना कुछ मिला है उसमें से थोड़ा सा वापस कर देने में अहंकार किस बात का। कहना मैं ये चाहता हूं कि हमें व्यक्तिगत या संस्थागत यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना से ऊपर उठकर अपने देश, अपने समाज और अपने सैनिकों के कल्याण के लिए काम करना है। पिछले सालों में आप लोगों से प्राप्त आर्थिक सहयोग से बड़ी संख्या में वेटरन्स, वीर नारियों और उनके डिपेंडेंट्स की मदद की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में 38,000 से अधिक इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को 133 करोड़ रुपए से अधिक की मदद की गई है। और इसी तरह किरकी और मोहाली के पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स,
देहरादून, लखनऊ और दिल्ली के चेशायर हाउसेस और देश भर के 36 वार मेमोरियल हॉस्टल्स को भी इंस्टीट्यूशनल ग्रांट प्रोवाइड की गई है। और मित्रों, शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे में आप द्वारा दिया गया अनुदान आयकर से भी, यानी इनकम टैक्स से भी, ये पूरी तरह से मुक्त होता है। और आज यहाँ उपस्थित प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की लीडरशिप से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार ने निजी क्षेत्र की ताकत और देश की तरक्की में उनकी भूमिका को पहचाना है। और 2014 से ही देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमने निजी क्षेत्रों की बढ़ोतरी के हर संभव प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्रों के लिए हमेशा से अछूता समझा जाने वाला यह डिफेंस सेक्टर भी आज आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी हाल में ही डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र को, यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। अलग अलग फोरम पर मैंने उन सभी लोगों से बातें भी की हैं और आज भी मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस सेक्टर में आए और अनेक सरकारी नीतियां जो बनी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, उनका लाभ भी उठाएं। आप लोगों की तरक्की इस राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित करेगी। पहले प्राइवेट सेक्टर का नाम लेने में लोग संकोच करते थे किसी पब्लिक फोरम से, लेकिन आज बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ये अनिवार्य है। उनको पूरा प्रोत्साहन हमको देना पड़ेगा। आप लोगों की तरक्की इस राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित करेगी और आगे चलकर हमारी सेनाओं के सशक्तिकरण का भी यह माध्यम बनेगी और यह हम सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर CSR कॉन्क्लेव में आप सभी सम्मिलित हुए और मैं उन सभी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले वर्ष अपना बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इस फ्लैग डे के कार्यक्रम पर किया है। और इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अपील करूंगा कि वो पिछले वर्षों के योगदान से बढ़कर इस पर्व में अपना योगदान दें और हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार थोड़ी मुझसे चूक हो गई, मैंने अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण चूक हो गई, नहीं तो यह कार्यक्रम तो और भी भव्य बनाया जा सकता था। और कोशिश मैं करूंगा कि अगले साल मैं स्वयं इस कार्यक्रम को करने में मैं रुचि लूंगा और अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर के लोगों का हो, यह हमारी यह कोशिश होगी अगले कार्यक्रमों में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आपके प्रेरणामयी शब्दों के लिए अत्यंत आभार। अब समय आ गया है उद्योग जगत के विशिष्ट उद्यमियों, वर्ष 2020-21 के मेजर कंट्रीब्यूटर्स को सम्मानित करने का। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मेजर कंट्रीब्यूटर्स को सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया। सम्मान की श्रृंखला में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सम्मान ग्रहण करेंगे श्री दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन SBI। SBI ने 10 करोड़ की राशि प्रदान की है। इसके बाद सन टीवी नेटवर्क सम्मान ग्रहण करेगी श्रीमती कावेरी कालनेती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सन टीवी, 5 करोड़ की राशि कंट्रीब्यूट करने का सम्मान। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड श्री वाई विश्वनाथ गौड़, MD एंड CEO LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जोरदार तालियों से अभिनंदन। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया श्री V कल्याणा रामा, चेयरमैन एंड MD कॉनकॉर। श्री      -- . 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
LG Electronics India Vice President Shri Vinod Kumar, VP Shri Deepak Bansal. इसके बाद तैयार हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री ओपी चोक, जनरल मैनेजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री ओपी चोक, जनरल मैनेजर। ओपी चोक। इसके बाद इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जनरल मैनेजर श्री अजय स्वामी। श्री अजय स्वामी। इसके बाद आईसीआईसीआई फाउंडेशन प्रेसिडेंट श्री सौरभ सिंह और आईसीआईसीआई बैंक बिजनेस हेड डिफेंस इकोसिस्टम श्री विशाल बत्रा, ट्विन ब्रदर ऑफ कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। शौर्य और शौर्य का एहसास। और अब स्वयं मास्टर ऑफ सेरेमनी अब मैं वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन के लिए उन्हें बुलाना चाहूंगा जो कहते हैं, अगर हिम्मत का हथियार हो, दिल में अंगारों का हार हो, भारत माता से प्यार हो, हम नया इतिहास बनाएंगे, नया तूफान लाएंगे। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिनकी शख्सियत अपने खून पसीने से सैनिक कल्याण का हर राज खोलती है, उनके दिलों की धड़कनें भी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलती है। अब मैं सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड एयर कमोडोर बी आहलूवालिया विशिष्ट सेवा मेडल से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन वोट ऑफ थैंक्स देने की कृपा करें। श्री एयर कमोडोर बी आहलूवालिया विशिष्ट सेवा मेडल। Honorable Raksha Mantri ji. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.